عزیز طلبہ و طالبات، اندرا گاندھی نیشنل اوپن یونیورسٹی کے اس تعلیمی پروگرام میں ڈاکٹر ظفر عبداللہ وانی آپ سب کا خوش آمدید کرتا ہوں۔ عزیز طلبہ و طالبات، آج جس موضوع پر ہم گفتگو کرنے جا رہے ہیں اس موضوع کا عنوان ہے انشائیہ اور مضمون نگاری۔ اس سے پہلے ہم نے اس اکائی میں طنز و مزاح کے حوالے سے بات کی تھی۔ آج ہم انشائیہ اور مضمون نگاری کے حوالے سے بات کرنے جا رہے ہیں۔ آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ موضوع پچھلے موضوع سے بالکل مختلف ہے، اور ساتھ ہی ساتھ آپ کے ذہن میں یہ باتیں بھی رہے کہ اس موضوع میں دو چیزیں، یعنی ایک انشائیہ اور دوسری چیز جو ہے وہ مضمون نگاری آپ کو پڑھنے کو ملے گی اور ساتھ ہی ساتھ دیکھنے کو بھی ملے گی۔ دونوں میں کافی حد تک جو ہے اکثر و بیشتر یہ دیکھا گیا ہے کہ لوگ جو ہے دونوں کو ایک ہی سمجھتے ہیں، یعنی کبھی کبھار انشائیہ کو مضمون میں ضم کیا جاتا ہے اور کبھی کبھار مضمون کو انشائیہ میں ضم کیا جاتا ہے۔ آئیے ان تمام باتوں کو تفصیل سے جاننے کی کوشش کر لیں گے، اور سب سے پہلے ہم انشائیہ کے حوالے سے بات کر لیں گے۔ عزیز طلبہ، انشائیہ کے لغوی معنی عبارت کے ہیں، یعنی انشائیہ نثری ادب کی وہ صنف ہے جو مضمون کی مانند لگتی ہے۔ جیسے میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ لوگوں سے کہا، میں نے کہا یہ دو چیزیں ہیں، یہ دونوں الگ الگ ہیں، مگر آپ کو شاید ہمارے جو اکثر و بیشتر طلباء جو ہوتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دونوں جو ہے ایک ہی ہے۔ حالانکہ میں نے آپ لوگوں سے کہا یہ ادب کی وہ صنف ہے جو مضمون کی مانند لگتی ہے۔ کبھی کبھار آپ لوگوں کو یہ مشکل لگ جاتا ہے، مشکل ہوتا ہے کہ مضمون کیا ہے اور انشائیہ کیا ہے۔ ان تمام چیزوں کو بہت ہی باریکی سے سمجھنے کی کوشش کیجئے، اور پھر آپ جب پوری طرح سے سمجھ پاؤ گے آگے آپ مضمون اور انشائیہ کو ایک ہی نظر میں پہچانو گے۔ عزیز طلبہ، مضمون الگ انداز رکھتی ہے اور انشائیہ کا اپنا ایک الگ انداز ہوتا ہے۔ انشائیہ میں انشائیہ نگار آزادانہ طور پر اپنی تحریر پیش کرتا ہے۔ یہاں کوئی پابندی نہیں ہوتی ہے، یہاں کوئی جو ہے قدغن نہیں لگایا جاتا ہے، جس میں اس کی شخصیت کا پہلو نظر آتا ہے۔ جو یہ تحریر کرنے والا انشائیہ نگار جو ہوتا ہے، اس کے انشائیہ میں جو ہے اس شخص کے جو ہے اس کی شخصیت کے پہلو آپ کو نظر آئیں گے، یعنی کہ جو یہ مضمون لکھ رہا ہے اس مضمون میں اس شخص کو آپ سمجھ پاؤ گے، یہ کس طرح کا شخص ہے، اس کی ذہنیت کیا ہے، اس کی نفسیات میں کیا کیا چیزیں ہیں۔ ان تمام چیزوں کو جو ہے انشائیہ کو پڑھنے کے بعد آپ سمجھ پاؤ گے، کیا یہ جو ہے خوش طبیعت کا ہے یا جو ہے یہ بوجھل پن ٹائپ کا آدمی ہے۔ یہ تمام چیزیں جو ہے مطلب ایک طرح سے جو ہے انسان سے واقفیت آپ کو جو ہے انشائیہ پڑھنے کے بعد حاصل ہوگی۔ مگر جو انشائیہ جس شخص کا آپ پڑھ رہے ہو، ذہن میں رکھ لیجئے، آپ اس شخص کی شخصیت سے جو ہے اس کے مختلف پہلو آپ کو جو ہے اس انشائیہ میں نظر آئے گی۔ ایسا نہ ہو کہ آپ جو ہے کسی شخص کا جو ہے انشائیہ پڑھ رہے ہو اور بعد میں جو ہے پتہ چلا کہ کسی اور کی شخصیت کو اس میں ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہو۔ یاد رکھ لیجئے، میں آپ لوگوں سے یہ کہہ رہا ہوں کہ جو شخص انشائیہ لکھ رہا ہے اسی شخص کے مختلف پہلو جو ہے وہ اس میں نظر آئے۔ کسی خاص نتیجے کے بغیر بات کو ختم کرتا ہے
यानी नतीजे को कारी पर छोड़ देता है। ये इंशाया है। इंशाया में जो है आजादी होती है। इंशाया में जो है कोई नतीजा आपको जो है लास्ट, जिसे आप कहते हो कि आप जो है इसका एंड होगा, वो एंड पे कुछ बातें ऐसी रह जाती है जो इंशाया निगार आपसे नहीं बल्कि आपको खुद आपसे नहीं कहता है, बल्कि आपको ही सोचने पे मजबूर करता है, और वो कारी जो है कारी पर छोड़ देता है। यानी कि आखिरी फैसला जो होता है इंशाया का, वो इंशाया निगार खुद नहीं करता है, बल्कि वो जो है वो कारी करता है। इन बारीकी से देखिए, इन छोटी छोटी चीजों को ध्यान में रख लीजिए, क्योंकि इसके बाद जो है जब आप मजमून निगारी पे आ जाओगे तो आपको वहां जो है डिफरेंट नजर आएगा। कुछ चीजें होगी जो आपको जो है जो दोनों में मुमासलत रखती है, लेकिन बेशतर चीजें आपको वहां पे ऐसी देखने को मिलेगी कि आप जो है आप फिर दोनों को अलग कर सकते हो। गोया इंशाया अदब की एक नहायत ही लतीफ सिनफ है। किसी मजमून ही को जब एक खास अंदाज में तहरीर किया जाता है जिसकी बेतरतीबी का अपना एक रब्त होता है, यानी बेतरतीबी से, इसकी कोई तरतीब नहीं होती, ये बेतरतीबी से लिखा जाता है, लेकिन फिर भी जो है इसमें एक रब्त होता है, और ये बेतरतीबी ही जो है इसकी एक खुसूसियत मानी जाती है। अजीज तलबा, आपने देखा होगा चाहे नॉवल हो, दास्तान हो, अफसाना हो या कोई और सिनफ हो, अगर उसमें जो है रब्त नहीं होगा, अगर उसमें जो है कंटिन्यूएशन नहीं होगी, अगर उसमें तसलसल नहीं होगा, तो वो चीज जो है वो चीज उसमें कोई रब्त नहीं होगा, तो बेतरतीबी से जो है वो चीज बन पाएगी, और जब वो बेतरतीबी से बन पाएगी तो जाहिर सी बात है वो सही नहीं होगी। मगर हमारे इंशाया में, आज हम इंशाया की बात कर रहे हैं, तो इस इंशाया में बेतरतीबी ही इसकी खुसूसियत है। आगे आप जान पाओगे कि किस तरह बेतरतीबी इसकी खुसूसियत है। जब आप कोई इंशाया पढ़ोगे आप देखोगे उस इंशाया में जो है यहाँ वहां जो है जब आपको ख्यालात नजर आएंगे तो आप एक नतीजे पे पहुंचने से पहले जो है आप वो अपने कारी को हवाले कर देते हो, और वही बेतरतीबी जो है इसकी खास खुसूसियत मानी जाती है, और बात से बात निकलती चली जाती है। बज़ाहिर इस बेतरतीबी से वजूद में आने वाली सिनफ को, जिसमें एक शऊरी रब्त तसलसल कायम रहता है, इंशाया कहते हैं। अब देखिए, अगर हम इस मुख्तसर बहस को एक ही लाइन में समेटने की कोशिश कर लेंगे तो हम ये कह सकते हैं कि बेतरतीबी से लिखा गया ये मजमून जो है अपनी एक रब्त रखता है, और यही इंशाया कहलाता है। कभी कभार हम जो है अक्सर और बेशतर जब आप किसी शरारत के शिकार हो जाते हो या कभी कभार शरारत करने लगते हो, तो उसमें आप बहुत कुछ, या मान लीजिए कि किसी से आपको लड़ाई हो जाती है, आप उस दौरान बहुत कुछ सामने वाले को बोल देते हो। मगर अब देखिए, कई बातें उसमें ऐसी भी आ जाती है जो सोचने पे मजबूर कर देती है, आखिरकार आपने क्यों ऐसी बात की। और दूसरी बात यह है कि आपकी शख्सियत भी वहां झलकती है। किसी ने आपको गाली दी तो आपने जो है उसको बरा बुरा कहा, लेकिन गाली नहीं दी, तो पता चलता है कि आपकी तरबियत में शायद जो है ये चीज शामिल नहीं है, इसलिए आपने जो है गाली नहीं दी। या कभी कभार जो है आप इशारे या किनारे के जरिए जो है कोई ऐसी बात सामने वाले को कह देते हो उस लड़ाई के दौरान, या अपनी इस तकरीर में जो आप तकरीर करने लगते हो, आपके सामने जो है कई लोग जमा होते हैं, चाहे अदबी तकरीर अगर हम छोड़ के जो है क्या कहते हैं सियासी तकरीर की बात कर लेंगे, उसमें आप जो है मौका और महल के मुनासिबत से बोल पड़ते हो, और फिर बहुत सारी बातें आप झूठे, अक्सर व बेशतर जो है झूठे बातें ही किए जाते हैं, और इन झूठे बातों में जो है कोई ऐसी नहीं, इस बात के पीछे कोई लॉजिक होगा, वो शऊरी तौर एक जो है क्या कहते हैं गैर शऊरी तौर जो है इसमें शऊर और रब्त तसलसल कायम पैदा होता है। तो ये चीज जो है ये चीज उस वक्त इंशाया कहलाती है।
इंशाया की जामे व माने तारीफ की जरूरत हमेशा महसूस की जाती रही। इससे व जस्तजू के नतीजे में कई तारीफें अदीबों और नकादों ने पेश की है। देखिए बेटा, जब हम इंशाया की तारीफ का तयन करने के लिए एक लुगात की तरफ रुजू करते हैं तो कम अज कम मानवियत जरूर सामने आ जाती है। फ्रेंच आस्ट्रिया लुगात, फेरोजुल लगात और दीगर के मुताले से ये वाजिया हो जाता है कि इंशाया का लफ्ज इंशा से निकला है और इस अरबी नस्ल लफ्ज के माने इबारत, तहरीर, दिल से बात पैदा करना, अल्माने व बयान, सनाया बदाय, तर्ज तहरीर, खूब इबारत और वो जुमला जिसमें सच और झूठ का गुमान न हो सामने आता है। देखिए, वो जुमला जिसमें सच और झूठ का गुमान न हो सामने आते हैं। इंशाया के इन लुग़वी मानों को बयान कर देने से मुद्दा वाज़ेह नहीं होता है, यहाँ बात फिर भी अधूरी रह जाती है। बकौले मोहम्मद हसनैन वो लिखते हैं, कोट क्या लिखते हैं, कहते हैं कि इंशाया का मादा नशा यानी नश और छोटी ई नशे, नशा जिसके लग़वी माने पैदा करना। इंशाया की तवानाई दरअसल ख्याल की ताजगी, तनुमंदी से जाहिर होती है। इंशाई कौत से बात में मानवियत पैदा होती है और ख्यालात की लहर निकलती है, अनकोट। इसी तरह जो है डॉक्टर वहीद कुरैशी जो है इंशाया की तारीफ में लिखते हैं, कोट, वो लिखते हैं कि इंशाया का लफ्ज अरबी जुबान से अपनी इस्तिलाही हैसियत के साथ नाज़िल हुआ है। यानी इंशाया का लफ्ज इब्तिदा में एक गैर दफ्तरी इस्तिलाह था जिसका इतलाक सरकारी फरामीन और मकतूबात के रफ ड्राफ्ट पर होता था और साफ शुदा मसूदे की तहरीर के नाम से पुकारा जाता था, यानी इंशाया। इसने दीवान और इंशा का नाम पाया, रफ्ता रफ्ता फरामीन और मकतूबात की तहरीर और तरतीब के लिए इंशाया का लफ्ज मुस्तमिल हो गया। यही नस्र अहकाम और फरामीन और मकतूबात की जुबान करार पाई। इस नस्र में खुतबात का अंसर जुज़्व अज़म था। इससे इंशा परदाजी की वो खास नहज वजूद में आ गई जिसको हम इंशाया के नाम से याद करते हैं। अजीज तलबा, देखिए बकौले डॉक्टर वहीद कुरैशी, उन्होंने जो है इस इंशाया को एक यहाँ मखसूस इदारों के साथ जोड़ने की कोशिश की है। जैसे कि वो कहते हैं कि ये इस्तिलाह जो है दफ्तरों के लिए मखसूस थी और जो है फिर रफ्ता रफ्ता जो है इसको खतूत निगारी के लिए इस्तेमाल किया जाने लगा और यही चीज जो है फिर बाद में इंशाया के नाम से याद की जाने लगी। कशाफ तनकीदी इस्तिलाहात में लिखा गया है कि कोट, इंशाया एक इसकी हैसियत से ऐसे का तर्जुमा है। अंग्रेजी में आप इसे ऐसे कहते हैं, ये लिखते हैं कि इंशाया जो है एक इस्तिलाह की हैसियत से ऐसे का तर्जुमा है, यानी कि जो ऐसे आप अंग्रेजी में लिखते हो ये कहते हैं ये उसी का तर्जुमा है। पहले पहल इससे भी मजमून ही कहा जाता था, लेकिन मजमून एक ऐसी आम इस्तिलाह है जिसकी हदूद में सवानिया, मजमून, तहकीकी मकाला, हता के अखबार का मकाला, इफ्तिखाया भी शामिल हो जाता है। मजमून की इस किस्म के लिए किसी नए लफ्ज की जरूरत थी, चनाचे वजीर आगा इंशाया का लफ्ज तजवीज वजीर आगा ने इंशाया का लफ्ज तजवीज किया जो अब इस्तिलाह का दर्जा इख्तियार कर चुका है। देखिए, इस कशाफ तनकीदी इस्तिलाहात में जो बात कही गई है उससे अगर हम नटशल में पेश तो हम ये कह सकते हैं कि जो पुराने ज़माने से इंशाया का नाम दे दिया है,
ये जो है तनकीदी इस्तिलाहात में इस बात को जो है लिखा गया है। क्या ये वाकई ऐसे है? क्या ये वाकई मजमून निगारी है? अगर ये मजमून निगारी है तो फिर मजमून निगारी और इसमें तो फर्क नहीं होना चाहिए। फिर फर्क क्यों है? क्या खाली जो है इसे अलग करके जो है नाम रखा, अलग इसका नाम रखा गया, बाकी ये सब कुछ वही है? नहीं, मैंने आप लोगों से अभी थोड़ी देर पहले ये अर्ज भी किया, मैंने कहा कि ये जो है ये आजादाना तौर पर लिखा जाता है और साथ ही साथ जो है इसका आखिरी नतीजा भी जो है कारी पे ही जो है सोचने पे कारी को मजबूर करता है, या कारी के हवाले ही जो है उसे किया जाता है। आइए देखिए बकौल सलीम अख्तर वो क्या लिखते हैं इंशाया के बारे में। वो इंशाया के बारे में लिखते हैं, कोट, वो कहते हैं कि इंशाया के जो भी माने हो, इंशाया सिर्फ और सिर्फ ऐसे का मुतरादिफ ठहरा है। देखिए इन्होंने बिल्कुल दो टोक अल्फाज में ये बात कही है कि ये जो है ये इंशाया के माने जो भी है। अब इसने जो है फिरोजुल लगात हो या कोई और डिक्शनरी हो, चाहे क्या कहते हैं कोई और तारीफ है, इन्होंने कहा जो भी माने इसके हो, जिसने जो भी इसके माने दिए हो, बस मैं सिर्फ ये कहता हूं क्या कि इंशाया सिर्फ और सिर्फ ऐसे का मुतरादिफ ठहरा, यानी कि इसका जो है मुतरादिफ जो है, इसका अपोजिट जो है वो मैं ऐसे को ठहराता हूं। अपनी बात को वो इस तरह खत्म करते हैं। आइए देखने की कोशिश कर लेंगे ये तमाम तारीफें मुख्तलिफ नाक़दीन के हवाले से हमारे जहनों में रहनी चाहिए, और फिर अब हम देखेंगे कि इंशाया है क्या जिन लोगों ने जो तारीफें की क्या वही है, या इससे हटकर कोई ऐसी नई चीज है जिसको हमने अभी तक जो है आप लोगों से उसके बारे में कुछ कहा नहीं। इस चीज को देखने की कोशिश करते हैं। देखिए बेटा, उर्दू अदब में इंशाया कब और कैसे वजूद में आया बहुत ही तवज्जो तलब मौजू है, जिस पर काफी बहस हो चुकी है, लेकिन ये फैसला कर पाना बहुत ही मुश्किल है कि पहला इंशाया निगार कौन है। अभी तक हमने देखा है कि इंशाया की तारीफ, अब हम जो है इन तारीफों के हवाले से ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि इंशाया पे अगर बहुत बहस हुई है तो ये भी बताता चलूं आप लोगों को कि पहला इंशाया निगार कौन है। जब हम मगरिब में इंशाया के हवाले से बात करते हैं तो हमारी नजर जो है फ्रांसी अदीब मोंतीन पर पड़ती है। आपने नाम इससे पहले भी सुना होगा। मोंतीन को जो है मगरिब में इंशाया का मौजूद तो बानी करार दिया जाता है, यानी कि अगर आप ये कहेंगे तो गलत ना होगा कि फादर ऑफ दिस लाइट एसे, बल्कि हम कहेंगे इसके जो है फादर वो मोंतीन है। मगरिब में उन्होंने ही जो है इसको जो है इसकी ताकबेल डाली थी। फुर्सत के लम्हात में उन्होंने अपने तजुर्बों और मुशाहिदों की रोशनी में मुख्तलिफ उन्वानात पर अपने गैर मरबूत ख्यालात को सुपर्दे कलम किया। अपनी इस कोशिश और आजमाइश को उन्होंने ऐसे का नाम दे दिया। देख रहे हैं, बिल्कुल साफ है। अगर मोंतीन जिसने फ्रांस में जो है इसकी बुनियाद डाली थी, वो बिल्कुल जो है फुर्सत के लम्हात में अपने तजुर्बों, अपने मुशाहिदों की रोशनी में मुख्तलिफ उन्वानात, यानी यहाँ आपकी जिंदगी के मुख्तलिफ तजुर्बात, आपकी जिंदगी के मुख्तलिफ मुशाहिदात, और आप उन तजुर्बों, आप उन मुशाहिदात को मुख्तलिफ उन्वानात पर जो है गैर मरबूत ख्यालात को सुपर्द कलम करते हैं, और इस कोशिश और आजमाइश का नाम आप जो है ऐसे देते हो फ्रांस में। इनकी इंशाया निगारी का सूरज हर दौर में चमकता ही रहा, यानी ऐसे जिसको आपने कहा है, और हर दौर में इससे पढ़ने वालों का एक हल्का मैसर आता रहा। मगर हकीकत यह है कि इंशाया में मोंतीन को अवलियत के बावजूद इससे हतमी, मिसाली
या हर्फ आखिर नहीं दिया गया। यानी कि मौतनीन ने अगर जिसकी बुनियाद डाली है, लेकिन फिर भी जो है हम फाइनलाइज नहीं करते हैं कि क्या मौतनीन ने इससे पहले कहीं देखा होगा या ये मौतनीन की खुद की इजाद है। अभी तक जो है हमने कहा कोई हतमी फैसला हमने नहीं दिया है। वह इंशाया के इर्तिका और रिवायत में इनकी हैसियत जो है इब्तिदाई नौयत की है। फाइनल नहीं कर सकते हैं, लेकिन इब्तिदाई नौयत की इनकी हैसियत जरूर है। वह मुतीन की तकलीद में बहुत से इंशाया निगार उभर कर सामने आ गए, जिनमें फ्रांसिस बेकन के एक अहम इंशाया निगार जिनमें जो है फ्रांसिस बेकन जो है एक अहम इंशाया निगार माने जाते हैं। बेकन ने जो है 1597 ईस्वी में जो है 10 के नाम से तबाह की है। इनके इंशायों के ऐसे जो है इनके इंशायों के ऐसेज पर मुश्तमिल एक किताब खास इसको जो है इसको एक खास जो है नाम रखती है। उन्होंने जो है अपने मज़ामीन में जो है जो ये मज़ामीन लिखे हैं, मैं बात कर रहा हूँ बेकन के हवाले से। बेकन ने जो मज़ामीन लिखे हैं, उन्होंने अपने मज़ामीन में गैर ज़रूरी मबाहिस के बजाय दलील और जो है बुरहान से काम लिया है। बेकन के बाद अंग्रेजी एस्से निगारों में इब्राहिम कौले को बहुत ही नुमाया मुकाम हासिल हुआ। उन्होंने मुकम्मल तौर पर मुतनीन के इंशाए फन के रूह के मुताबिक जो है इंशाए लिखे हैं। गोया मगरिब में इंशाया को फरोग देने में अंग्रेजी अखबारात और जराइद ने भी एक अहम खिदमत अंजाम दी। अगरचे वहां पे बेकन भी मौजूद थे, अगर वहां पे मुतनीन भी मौजूद थे, लेकिन फिर उसके बावजूद भी जो है वहां के अखबारात ने, अगरचे बेकन ने लिखा, अगरचे मुतनीन ने लिखा है, लेकिन इसके बावजूद भी जो है अजीज तलबा जो है उस जमाने के अखबारों और उस जमाने के रसायल और जराइद ने जो है इसमें जो है एक अहम रोल अदा किया। यानी कि इंशायों को शाया करने में, इंशायों को छापने में, इंशायों को जो है लोगों तक पहुंचाने में जो है इन अखबारात ने जो है मगरिब में एक अखबारों ने जो है रसायलों ने जो है एक अहम रोल अदा किया। रिचर्ड स्टाइल और एडिसन ने अपने जराइद टेटलर और स्पेक्टेटर के जरिए नए नए तजुर्बों से इस सिन्फ अदब को दिया। ये दो अहम मिसालें जो है, एक जो है एडिसन अपने इस जराइद टेटलर और स्पेक्टेटर के जरिए जो है, टेटलर और स्पेक्टेटर के जरिए जो है वो जो है इसको शाया करते रहे, इससे अदब को फरोग मिला। वह एडिसन और स्टाइल के ऐसे निगारी ने अंग्रेजी एस्से पर गहरे असरात मुरतब किए और इसका दामन हर तरह के फन से मालामाल कर दिया। ये हम मगरिब के हवाले से बात कर रहे हैं कि किस तरह मगरिब में जो है एस्से लिखा गया, किन ख्यालात के तहत लिखा गया, किन मुशाहदात के तहत, किन तजुर्बात के तहत लिखा गया, और कौन बुनियादी ऐसे निगार उस जमाने में सामने आए और कौन बुनियादी जो है क्या कहते हैं अखबारात और जराइद जो है उस जमाने में सामने आए। इसके बाद अंग्रेजी अदब में ऐसे निगारों का एक जमे गफीर दिखाई देता है। यानी जो है आप कह सकते हो बेकन हो या जो है क्या कहते हैं एडिसन हो या जो है स्टाइल हो, इन लोगों के लिखने के बाद, इन लोगों के इंशाया को फरोग देने के बाद जो है यहाँ मगरिब में जो है इंशाया लिखने वालों का एक बहुत बड़ा जो है जमे गफीर दिखाई देता है, जिन्होंने जिंदगी के मुख्तलिफ मौज़ूआत पर भरपूर इंशाए तहरीर किए। यानी जिंदगी के मुख्तलिफ मौज़ूआत पर, जिंदगी के मैंने आप लोगों से कहा, मैंने कहा उस शख्स का अक्स इसमें दिखाई देता है जो इंशाया लिखता है। तो यहाँ पे भी मैं कहता हूँ जब पूरी तरह से जमे गफीर जो है सामने आ गया तो इन लोगों ने जो है मुख्तलिफ मौज़ूआत पर भरपूर इंशाया
तहरीर किए, जिनमें चार्ल्स लैम्ब, वर्जिना वो मकाले या कॉरलाइन रिक्सन, मैथ्यू ऑरलैंड, हर्बर्ट रेड, गॉर्डस वगैरह काबिल जिक्र नाम है, जिन्होंने अपने वक्त में, अपने दौर में मगरिब में जो है इंशाया को फरोग देने में एक अहम रोल अदा किया है। ऐसे उर्दू अदब में लफ्ज इंशाया अंग्रेजी लफ्ज में अंग्रेजी में रस्मी या गैर रस्मी जो है शख्सी, समाजी, तनकीदी, सियासी या मजहबी वगैरह हर तरह के मज़ामीन के लिए ये लफ्ज जो है इस्तेमाल किया जाता है। चाहे आप जो है कोई शख्सी मजमून लिखोगे, चाहे कोई समाजी मजमून लिखोगे, कोई तनकीदी लिखोगे, सियासी लिखोगे, मजहबी लिखोगे, वह हर तरह के मज़ामीन के लिए यही लफ्ज जो है इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि हमने कहा कि उर्दू अदब में जो है लफ्ज इंशाया अंग्रेजी लफ्ज के मानों में ही इस्तेमाल होता है। तो यहाँ जो है, यहाँ हम आप लोगों से कह रहे हैं कि जिस तरह का भी आप जो है ऐसे लिखोगे, जिस तरह का भी आप मजमून लिखोगे, चाहे वो शख्सी हो, रस्मी हो, तनकीदी हो, सियासी हो, मजहबी हो, हर तरह के मज़ामीन के लिए यही लफ्ज जो है इस्तेमाल हुआ है। अंग्रेजी अदब में लाइट एसे या पर्सनल एसे या आर्टिकल को मजमूई तौर पर ऐसे ही के जुमरे में रखा जाता है। आप लोगों को मैं बता दूं कि हम लोग जो है आज के दौर में जो है अब ऐसे और जो है हमसे जब कोई पूछता है तो फिर ऐसे और उस ऐसे में जिसे हम मजमून कहते हैं, फिर इस ऐसे जिसे हम इंशाया कहते हैं, में क्या फर्क है, आप लोगों के ज़हन में रखनी ये जरूरी बात है कि जब हम इंशाया की बात करते हैं तो खाली ऐसे न कहिए, बल्कि आप जो है लाइट ऐसे के तौर पर जो है इसका नाम ले लीजिए। और जब आप ये कहेंगे कि इसे हम लाइट ऐसे कहते हैं, तो अगर आप लोगों से कोई कहेगा कि ये लाइट ऐसे है, तो जान लीजिए कि वो जो है आपके सामने इंशाया को पेश कर रहा है। और अगर खाली ऐसे की बात चल रही है तो वो मजमून के तौर पर भी जो है वो बात हो सकती है। गोया उर्दू में पहले ऐसे के लिए जो है उर्दू जुबान का लफ्ज मजमू इस्तेमाल किया जाता था। बाद में इस लफ्ज को उर्दू वालों ने मुतअद्दिद मानों में इस्तेमाल किया और हर किस्म के अदब पारू, मसलन अलमी, तनकीदी, सवानी, रस्मी या गैर रस्मी वगैरह के लिए लफ्ज मजमून का इस्तेमाल जब किया जाने लगा, अंग्रेजी लफ्ज ऐसे की तरह उर्दू में लफ्ज मजमून भी वसत और जामियत के एतबार से हर तरह के मौज़ूआत को अपने दामन में समेटने लगा। तो मजमून में तंजिया और मज़ाया अदबी पारे भी जब जगह पाने लगे, अलमी मकालमों, मजहबी और सवानी मकालमों, शख्सियात के खाकों, मुरासलों, जलसों और जलूसों की रिपोर्टाज, रोज नामचों और इदारों की मजमूई तौर पर मजमून, इनको जो है मजमूई तौर पर मजमून ही कहा जाता था। लेकिन ये हालत ज्यादा देर तक कायम न रही। जो ही उर्दू जुबान में वसत आ गई, उर्दू जुबान का दामन फैला, उर्दू में इसमें मुख्तलिफ नामों के तहत नई असनाफ ने जन्म लेना जो है शुरू किया। और बाद असनाफ मगरिबी अदब के ऐसे अदबी पारे तख्लीक किए जाने लगे जो गैर रस्मी अंदाज से बयां और एक मुनफरिद उसलूब की बिना पर मुरासलों, मुकालमों, काफिये, सवानिया मज़ामीन, इदारे, खाका, रोजनामचे वगैरह से बिल्कुल मुख्तलिफ नौइयत के हामिल थे। और इस नौइयत के मज़ामीन को लाइट ऐसे, इंशाया लतीफ, लतीफ पारा, मजमू लतीफ, तईफ, मुराकबा, अफकार परेशा वगैरह का नाम दिया जाने लगा। अजीज तलबा व तालिबात, इस तमाम बहस से आप ये समझ गए होंगे कि जब हमारे पास जो है हमारे उर्दू जुबान में जो है मौज़ूआत का दामन फैलता गया
اور موضوعات کی وسعت بڑھتی گئی تو ظاہر سی بات ہے کچھ بے ترتیبی والے بھی مضمون سامنے آ گئے، اور جو ہی یہ بے ترتیبی والے مضمون سامنے آ گئے تو ہم نے کیا کیا؟ ہاں، میں نے کہا جو ہے سماجی ہو، وہ جو ہے خاکہ ہو، روزنامچہ ہو، آپ جو ہے جہاں پہ بھی آپ کو یہ بے ترتیبی نظر آئے گی، جہاں پہ بھی جو ہے آپ کو آزادانہ ماحول نظر آئے گا، جہاں پہ بھی آپ کو ایسا نظر آئے گا کہ اس کا خاتمہ نہیں ہوا ہے بلکہ کاری پر چھوڑا گیا ہے، تو آپ نے جو ہے اس پریشان افکار پریشان وغیرہ کا نام جو ہے انشاء رکھا ہے۔ بعد میں لائٹ ایسے یا انشاء لطیف جیسے مضامین کو ہی انشاء کا نام ملا، اور اردو ادب میں انشاء ایک تناور درخت کی صورت میں ابھر کر پروان چڑھنے لگا، یعنی دیگر اصناف کی طرح انشاء کو بھی ایک صنف کی حیثیت سے جو ہے اب تسلیم کیا جانے لگا۔ اردو میں آ کر ایسے نے پہلے مضمون کا چولہا اختیار کیا اور مضمون کے ہی بدن سے انشاء نے جنم لیا، اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے اکثر و بیشتر جو ہے ہمارے بچے جو ہے اس چیز کا، اس غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں کہ مضمون جو ہے مضمون ایسے ہے، جبکہ مضمون اور ایسے میں آپ جو ہے انشاء میں جو ہے آپ فرق دیکھ رہے ہو کہ کس طرح کی فرق ہے، مگر چونکہ ابتدا میں ہم نے اس کا نام مضمون ہی رکھا تھا، اور آج بھی جو ہے ہمارے اکثر و بیشتر بچے یا ہمارے اساتذہ بھی کبھی کبھار جو ہے اس کو ایک ہی نام دیتے ہیں، یعنی کہ لائٹ ایسے کا نام نہیں لیا جاتا ہے، مگر حالانکہ تقاضا یہی ہے، حالانکہ جو ہے انصاف یہی ہے اس صنف کے ساتھ کہ آپ جو ہے اس کے ساتھ لائٹ ایسے کا نام لے لیجئے، تب جا کے جو ہے انشاء جو ہے مکمل ہوگا۔ گویا انشاء ترقی کے مختلف مدراج طے کرتے کرتے اپنی تکنیک، خیت اور اسلوب کے اعتبار سے نثری ادب میں ایک اہم صنف کی حیثیت اختیار کر چکا ہے۔ اب جو ہے ایک اپنی طور سے جو ہے اپنی الگ شناخت بنانے میں جو ہے ایسے اب جو ہے آج سامنے آ گیا ہے۔ گویا اردو انشاء کی اصطلاح ایک مخصوص صنف ادب کے لیے استعمال ہوتی ہے اب، جس کا ایک خاص داخلی مزاج ہے۔ گویا اردو میں بلا شبہ انشاء انگریزی سے آیا، لیکن کچھ محققین کے مطابق اردو انشاء بھی اردو انشاء جسے ہم ایسے بھی کہتے ہیں جو ہے اتنا ہی قدیم ہے جتنا کہ انگریزی ایسے، یعنی کہ جتنا کہ انگریزی انشاء جو ہے اتنا ہی قدیم جو ہے ہمارا جو ہے اردو انشاء بھی ہے۔ جس دور میں اردو میں اس طرح کے مضامین لکھے جا رہے تھے، اسی لیے کسی نے انشاء نگاری کو روایت کی ابتدائی املا جو ہے روایت کی ابتدا میں جو ہے ملاوجی سے کی ہے، اور کسی نے جو ہے سر سید اور کسی نے جو ہے سجاد حیدر یلدرم سے جو ہے اس کو جوڑنے کی کوشش کی ہے۔ یہاں تک کہ جاوید وشٹ نے اپنی کتاب انشاء اور انشاء 25 میں ملاوجی کی کتاب سبرس کو، جسے تمثیل کی ایک اہم کڑی مانا جاتا ہے، جسے تمثیلی سبرس کو جو ہے تمثیل کی پہلی کتاب بھی مانا جاتا ہے، یا نثر کی پہلی کتاب بھی اسے مانا جاتا ہے، تو انہوں نے جو ہے سبرس کو ہی انشاء کا نقش اول قرار دیا ہے۔ گویا وجی کا دور وہی ہے جو عالمی ادب کے پہلے انشاء نگار، مونتین اور انگریزی ایسے کے موجود بیکن کا ہے۔ یہی دور ہمارے یہاں جو ہے ملا وجی کا ہے۔ گویا کچھ نقاد سر سید احمد خان کو اس صنف کا موجود قرار دیتے ہیں، جن میں جو ہے سید ظہیر الدین مدنی، ڈاکٹر وحید قریشی، نیاز فتح پوری، ڈاکٹر محمد زکریا، پروفیسر جمیل آزاد، پروفیسر نذیر صدیقی اور ڈاکٹر سلیم اختر شامل ہیں۔ یہ لوگ سر سید کو ایک باقاعدہ انشاء نگار تسلیم کرتے ہیں، اور یہاں تک کہ ڈاکٹر سلیم اختر لکھتے ہیں کوٹ
क्या लिखते हैं, वो कहते हैं कि सर सैयद पहले अदीब हैं जिन्होंने अंग्रेजी ऐसे की देसी सिनफ यानी जो है मगरिबी सिनफ की कलम को गुलशन उर्दू में लगा लिया, और उन्होंने अंग्रेजी ऐसे का मुताला कर रखा था और वो इसके मजाजुदा भी थे। उन्होंने तबाजात लिखने के साथ साथ अंग्रेजी ऐसे के तराजिम भी किए। अलगर्ज इस नई सिनफ से वाबस्ता फनी और उसलूबियाती इम्कानात दरियाफ्त करने की सही सर सैयद ने की। चूंकि ये दावा जो है ख्वाजा हसन निजामी का है और वो सर सैयद को ही जो है उर्दू का मौजिद करार देते हैं। मुल्ला, हालांकि सच बात यह है कि हमें जो है इंशाया के इब्तिदाई नुकूज जो है मुल्ला वजी की सबरस में देखने को मिलते हैं, मगर यहाँ मुख्तलिफ नकात जो है मुख्तलिफ तौर पर अपनी राय पेश करते हैं और जो है रियाज फतेहपुरी जो है वो सर सैयद की शख्सियत को जो है इसका मौजिद करार देते हैं। और वो ये भी कहते हैं कि उन्होंने जो है अंग्रेजी ऐसे यानी कि अंग्रेजी में जो इंशाया लिखा जाता है उसका मुताला उन्होंने किया था और फिर जो है उस ऐसे की तमाम फनी लवाजमात से जो है उन्होंने जो है अच्छी तरह से जो है सीख लिया था और फिर उसी चीज को उन्होंने जो है उर्दू का जामा पहना लिया और वही चीज बाद में जो है इंशाया के तौर पर सामने आ गई। ये सर सैयद के बारे में कहा जाता है। तो आप देखते हैं ख्वाजा अहमद फारूक जो है वो मास्टर रामचंद्र की जो है तकदीमी हैसियत को लायक एहतराम करार देकर लिखते हैं कि मास्टर रामचंद्र जो दिल्ली कॉलेज के उस्तादों में माने जाते हैं, रामचंद्र ने जो है उर्दू मजमून यानी ऐसे से मुतारिफ उर्दू वालों को कराया। मास्टर रामचंद्र जो है कदीम दिल्ली कॉलेज के नामवर असातिज़ा में से थे। ख्वाजा अहमद फारूकी इनको मजमून निगारी, तर्जमा निगारी और सीरत निगारी में जो है और सीरत निगारी में चरागे रह तस्लीम करते हैं। बाज़ नाक़दीन जो है मिर्जा गालिब के खतूत पर इंशाए निगारी का गुमान करते हैं जिनमें वो अपने दोस्तों से महव कलाम है और तकल्लुफ़ का कोई पर्दा इनके दरमियान नहीं है। तो अजीज तलबा व तालिबात, ये चीज जो है जो मैं और आप देख रहे हैं वो ये है कि यहाँ जो है यहाँ मुख्तलिफ लोग जो है कोई मास्टर रामचंद्र को, मिर्जा असदुल्लाह खान गालिब को, कोई सर सैयद को जो है इसका मौजिद करार देते हैं। कोई जो है कोई ये भी कहता है कि हमें जो है गालिब के खतूत में जो है वो कोई तकल्लुफ़ यहाँ नजर नहीं आता है। यहाँ जो है वो जो है आपसी जो दोनों के दरमियान जो पर्दा हायल था वो पर्दा कट जाता है और बेतकल्लुफ़ होके जो है मिर्जा असदुल्लाह खान गालिब जब बात करते हैं, जिसको मैंने परसों आपको कहा था कि मुरासले को जब वो मुकालमा बना देते हैं तो ये लोग कहते हैं कि यही चीज जो है ये इंशाया कहलाती है, यानी कि ये इंशाया की खासियत ही है। तो इन लोगों ने गालिब को ही जो है इसका मौजिद करार दिया है। लेकिन डॉक्टर गुलाम हसनैन जुल्फ़कार इस हवाले से लिखते हैं कि बेतकल्लुफ़ाना गुफ्तगू का पैराया मजलिस जिंदगी की ये जज्बात और माहौल के दिलचस्प मरका गालिब के बाद खतूत को अफसाने और इंशाए के करीब लाते हैं। देखिए अब यहाँ अब शामिल बकौले क्या कहते हैं डॉक्टर गुलाम हसनैन जो है वो गुलाम हसनैन जुल्फ़कार जो है वो अब इस चीज में जो है यानी कि मिर्जा असदुल्लाह खान गालिब के खतूत में जो है वो अफसानीपन को भी जो है ढूंढने की कोशिश करते हैं और उन्हें लगता है कि इनमें जो है अफसानीपन शामिल है और इस हवाले से भी जो है ये अफसाने और इंशाए के करीब ये खतूत है। गोया उर्दू इंशाए के ज़िमन में मोहम्मद हुसैन आज़ाद का नाम भी काफ़ी अहमियत का हामिल है। वो सर सैयद के मुआसरीन में से थे और अपने मुनफरद उसलूब की बिना पर उर्दू में मुमताज़ मुकाम रखते थे। उन्होंने कदीम व जदीद के इम्तिजाज से
ایک ایسا دلکش اسلوب اختیار کیا جو صرف انہی سے مخصوص ہے۔ ڈاکٹر محمد صادق نے آزاد کی تحریروں کو تمثیلی انشائیہ قرار دیا ہے۔ گویا عزیز طلبہ و طالبات، سمجھنے کی بات یہ ہے کہ اردو کے کچھ انشا پرداز جن کے ہاں کسی نہ کسی صورت میں انشائیہ مل جاتا ہے، ان میں مولوی ذکر اللہ، مہدی افادی، سجاد حیدر یلدرم، سجاد انصاری، خلیل دہلوی، خواجہ حسن نظامی قابل ذکر انشائیہ نگار ہے۔ یوں تو اردو میں انشائیہ کی عمر جو ہے 100 سال سے بھی زیادہ ہے، لیکن بحثت ایک منفرد، جب سے یہ الگ ہوتی ہے، بحثت ایک منفرد نثری اصناف جو ہے، لیکن بحثت ایک منفرد نثری اصناف اردو انشائیہ اپنے تمام فنی و محسن کے ساتھ 20ویں صدی کی شروع کی دہائیوں میں ابھر کر سامنے آتی ہے۔ اگرچہ مغرب میں 19ویں صدی میں جو ہے اس کا ظہور ہوتا ہے، اور ہم نے کہا وہاں سے بھی ہی جو ہے ہمارے اردو ادب میں بھی جو ہے اس نے جو ہے داغ و بیل ڈالی تھی، لیکن ان تمام تعریفوں کے بعد جب ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ مضمون سے الگ کب ہوتی ہے، جب یہ مضمون سے الگ ہوتی ہے تو وہ صدی جو ہے 20ویں صدی کی شروع کی دہائیوں میں جو ہے ان کا شمار ہوتا ہے۔ گویا جب ڈاکٹر وزیر آغا اردو انشائیہ کو 20ویں صدی کی 5ویں دہائی کی پیداوار قرار دے کر ایک نیا تنازع کھڑا کر دیا ہے، تو بہت سے انشائیہ پڑھنے والے اس کے نوخیز ہونے پر حیرت کا اظہار کرنے لگے۔ یہ بات تو درست ہے کہ انشائیہ اردو ادب میں سر سید کے بعد باقاعدہ طور پر وارد ہو چکا تھا، لیکن سر سید کی مقصد کے رد عمل میں اس صنف کے اچھے نمونے بھی مذہب کی فلجڑیوں اور طنز کی جراحتوں میں دب کر رہ جاتے ہیں۔ گویا رشید احمد صدیقی، پطرس بخاری اور کرشن چندر کے ہاں طنز و مزاح سے بھرپور انشائیہ ملتے ہیں، جنہیں جدید انشائیہ کی قبیل جو ہے میں شامل نہیں کیا جا سکتا ہے۔ گویا جمیل آذر اپنے مضمون انشائیہ کی کہانی میں لکھتے ہیں، کیا لکھتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ انشائیہ کے بکھرے ہوئے نقوش تو ہمیں قدماء کے یہاں بھی مل جاتے ہیں، بالخصوص غالب کے مکاتب کے چند ٹکڑے، سر سید کے کچھ مضامین، ابوالکلام آزاد کی تصنیف غبار خاطر کے چند مضامین، اور کرشن چندر کے ایک دور مضمون، ایک دور ابتدائی نقوش کی نمائندگی کرتے ہیں۔ یعنی کہ ابتدائی نقوش، اس سے پہلے آپ نے دیکھا ہوگا کسی ناول، افسانے وغیرہ کے ابتدائی نقوش جہاں سے آپ کو دیکھنے کو ملتے ہیں، انہیں جو ہے تاریخ میں جو ہے اولویت دی جاتی ہے، انہیں تاریخ جو ہے وہ فراموش وہ نام کبھی نہیں کر سکتی ہے۔ ڈپٹی نذیر احمد کا نام، اگرچہ وہ ناول نگار پوری طرح سے نہیں تھے، لیکن ابتدائی دور میں انہوں نے جو ناول لکھی ہے، توبۃ النصوح، بنات الناس وغیرہ جو ہے انہوں نے جو ناولیں لکھی ہے، وہ یا جو ہے ان ناولوں کو جو ہے ابتدائی ناولیں سمجھے جانے لگا۔ اسی طرح سے جو ہے انشائیہ کے اگرچہ وزیر آغا کے مطابق یہ 20ویں صدی کی 5ویں دہائی تک وزیر آغا پہنچتے ہیں، لیکن اگر ہم وہیں سے سٹارٹ کر لیں گے، غبار خاطر میں جو چند ٹکڑے آپ کو انشائیہ کے نظر آتے ہیں، انہیں آپ کیا کہو گے؟ یا کرشن چندر کے یہاں جو ہے انشائیہ کے جو ٹکڑے نظر آتے ہیں، انہیں آپ کیا کہو گے؟ یا یہ چونکہ یہ ابتدائی نقوش ہے، اور اس لیے عزیز طلبہ و طالبات، ان چیزوں کو بھی جو ہے آپ کو ذہن میں رکھنا ہوگا، آپ کو جو ہے سبرس کو بھی ذہن میں رکھنا ہوگا، اور یہی سے جو ہے انشائیہ کی ابتدا ہوتی ہے۔ گویا انشائیہ کے فطری ارتقاء میں ہم ان تینوں کو کبھی نظر انداز نہیں کر سکتے ہیں، نہ سر سید کو، نہ کرشن چندر کو، اور نہ ہی ابوالکلام آزاد کو، لیکن انشائیہ کو اردو ادب میں بطور ایک علیحدہ صنف ادب
کہ جو ہے وہ ادب میں ایک علیحدہ صنف جو ہے کے طور پر جو ہے وزیر آغا نے جو ہے متعارف کروایا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ گویا 20ویں صدی کی ابتدائی 3 دہائیوں میں سامنے آنے والی انشائیہ نثر نگار انشائی نثر نگار نہ تو سر سید کی مقصدیت اور اصلاح پسندی کے زیر اثر تھے اور نہ ہی جو ہے ایڈیسن اور اسٹینڈ کے پھر ان کا براہ راست اور جدید ترین ادب کا مطالعہ اردو نثر کی وسعت کے ساتھ مل کر نئے مسائل و موضوعات سے آشنا کر رہا تھا۔ گویا اس کا اثر ان کے اسلوب پر بھی صاف نظر آتا ہے۔ اس وقت ہندوستان کے سیاسی اور سماجی حالات میں بھی کافی سدھار آ چکا تھا، جس کے باعث انشائی نثر نگاروں کے ہاں سکون، تمبانیت اور شگفتگی کے عنصر پہلے کی نسبت بڑھ گیا تھا۔ اس لیے عزیز طلبہ جو ہے فرحت اللہ بیگ سے لے کر ملا رموزی تک اصطلاحیت اور اصلاح پسندانہ سنجیدگی کی جگہ اور شگفتگی اور زیر لب تبسم نے لے لی۔ فرحت اللہ بیگ کے ہاں خوش طبعی ان کی تحریر کی اساس ہے۔ اونا اور پٹنہ ان کی انشائے رنگ کی تحریریں بہت ہی اہم ہے۔ یا خواجہ حسن نظامی کے مجموعے مضامین نے حسن نظامی اور سہپارۂ دل میں اختصار، شگفتگی اور غیر رسمی انداز جیسے انشائیہ عناصر کے حوالے سے الو دیا سلائی، جہنگر کا جنازہ اور آنسو کی سرگزشت جیسی تحریریں اہم اور قابل ذکر ہے۔ منشی خلیل دہلوی کے ہاں بھی میں سے بھرپور انشائیہ مل جاتے ہیں۔ یا سجاد انصاری کی محشر خیال میں انشائیہ عناصر پر مشتمل تحریریں بھی مل جاتی ہیں۔ رشید احمد صدیقی، کرشن چندر، فکر تونسوی، مشتاق یوسفی، شوکت تھانوی، قنائی لال کفور، پطرس بخاری وغیرہ کی تحریریں بھی انشائیہ کے زمرے میں شمار کیے جاتے ہیں۔ اگر ہم تاریخی اعتبار سے دیکھیں یا اگر تاریخی اعتبار سے دیکھا جائے تو جدید انشائیہ کی طرف آزادی کے بعد جو ہے خصوصی توجہ دی گئی ہے۔ ڈاکٹر انور سعید نصیر آغا کے مضمون بہار کی ایک شام کو اردو کا پہلا مکمل انشائیہ مانتے ہیں۔ ڈاکٹر انور سعید نے جو ہے افسانے کے حوالے سے بھی جو ہے بات کی ہے۔ انہوں نے وہاں پہ بھی کہا ہے کہ اردو کا پہلا افسانہ نصیر الختیجہ انہوں نے ہی قرار دیا ہے۔ تو ڈاکٹر انور سعید جو ہے ان کی لیٹسٹ تحقیق کے مطابق، جدید تحقیق کے مطابق جو ہے تاریخی اعتبار سے وہ نظر جب دوڑاتے ہیں تو وہاں پہ جو ہے وہ نصیر آغا کے مضمون بہار کی ایک شام کو اردو کا پہلا مکمل انشائیہ مانتے ہیں اور اپنی کتاب انشائے اردو ادب میں فٹ نوٹ دے کر جو ہے اس بات کی صراحت بھی کرتے ہیں کہ نصیر آغا در حقیقت وزیر آغا کا ہی ہمزاد تھا اور وہ اس قلمی نام سے ادبی دنیا میں مختلف نوعیت کے مضامین لکھ رہے تھے۔ اس دور میں جب ڈاکٹر وزیر لیے بغیر انشائیہ مضامین لکھتے ہیں، نذیر صدیقی اور مشکور حسین یاد بھی اپنی اسلوبیاتی فکر کے ساتھ اس صنف کی آبیاری کر رہے تھے۔ عزیز طلبہ و طالبات، اس تحقیق سے ایک بہت بڑی بات سامنے آ جاتی ہے، وہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اس فٹ نوٹ میں لکھتے ہیں کہ نصیر آغا جو ہے دراصل جو ہے وزیر آغا ہی ہے، یعنی کہ جس وزیر آغا کی ہم بات کر رہے ہیں جو 20ویں صدی کی 5ویں دہائی میں جو ہے جس کے آغاز ارتقاء کی بات کرتے ہیں، دراصل انہوں نے جو ہے ابتدا میں ہی جو ہے نصیر آغا کے نام کے ساتھ جو ہے یعنی نام بدل کے جو ہے انہوں نے مضامین لکھنے شروع کیے تھے۔ تو یہ ایک بہت بڑی بات سامنے آتی ہے۔ وہ ڈاکٹر وزیر آغا، مشکور حسین یاد اور نذیر صدیقی جس قسم کے مضامین لکھ رہے تھے، انہیں اختر اورنوی کا اختراج کردہ نام
इंशाया मिलने में काफ़ी वक्त सिर्फ हुआ। पाकिस्तान के क़याम के तकरीबन 14 साल बाद डॉक्टर वज़ीर आगा के इंशायों का पहला मजमुआ ख़याल पारे मंजर आम पर आया और बाकायदा एक सिनफ के तौर पर मुतारिफ करवाया। वज़ीर आगा की मैं बात कर रहा हूँ। इसकी शनाख्त कायम की और इसकी इनफरादियत को हर तरह से नुमाया किया। इनके इंशायों के 4 मजमुए आप अपने जहन में रख लीजिए। आपके जो है इम्तिहान में ये सवाल जो है बार बार पूछा जाता है कि जो है वज़ीर आगा जो है वज़ीर आगा के इंशायों के जो मजमुए शाये हुए हैं वो कौन से हैं। आप ख़याल पारे, चोरी से यारी तक, नंबर 3 दूसरा किनारा और नंबर 4 समंदर अगर मेरे अंदर गिरे के नाम से मंजर आम पर आ चुके हैं। बल्कि अब तो इनके इंशायों का कुलियात भी पगडंडी से रोलर जो है तक भी शाया हो चुका है, जिसमें इनके ये चारों मजमुए शामिल है जिनका मैंने ऊपर जिक्र किया है। अजीज तलबा, जिस वक्त वज़ीर आगा का मजमुए ख़याल पारे शाया हुआ, इस सना में जो है नज़ीर सिद्दीकी का मजमुआ शोहरत की खातिर भी मंजर आम पर आया। जबकि तीसरे अहम जदीद इंशाया निगार मशहूर हुसैन याद की किताब जौहर अंदेशा 1975 भी इशाअत पजीर हुई। गोया जदीद के तौर पर यानी एसे और एसे, लाइट एसे, पर्सनल एसे, इंशाया निगार इंशाया पर जो है अलग अलग नाम जो है इसको देते थे। लिहाजा इनके यहाँ नुक्ते नज़र के साथ साथ उसलूब का भी इख्तिलाफ पाया जाता है। डॉक्टर वज़ीर आगा, नज़ीर सिद्दीकी और मशहूर हुसैन याद के बाद इंशाया को इजहार के मुनफरद वसीले के तौर पर आजमाया गया और रफ्ता रफ्ता इंशाया लिखना एक शाइस्ता, सुस्त और शगुफ्ता अमल करार पाया, जिसमें शिरकत के लिए बहुत से उदबा बेताब नजर आने लगे। अगर ये कहा जाए कि इस दौर में इंशाया की तहरीक परवान चढ़ी तो बेजाना होगा। मज़कूरा 3 इंशाया निगारों के दोष बदोश डॉक्टर दाऊद रहबर, जावेद सिद्दीकी, गुलाम अली चौधरी, हुसैन काज़मी, मुमताज मुफ्ती, अमजद हुसैन, जस्टिस रुस्तम कियानी के नाम काफी नुमाया नजर आते हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने जो है पाकिस्तान में जो है बल्कि उर्दू दुनिया में जो है इंशाया को जिंदा रखा है। अजीज तलबा व तालिबात, 1975 से लेकर जो है अब तक के दौर को वजह तौर पर उर्दू इंशाया की मुसलसल कामरानियों का दौर करार दिया जाता है। इसकी मकबूलियत की बड़ी वजह यह है कि ये एक इम्तियाजी सिनफ नसर है जिसमें शेर जैसा हुस्न मौजूद है। आज़ादी के बाद हिंदुस्तान के मुकाबले में पाकिस्तान में इंशाया ने तरक्की के मनाजिल तय किए। जिस वक्त पाकिस्तान में इंशाया की तहरीर अपने शबाब पर थी, उस वक्त हमारे यहाँ हिंदुस्तान के सिर्फ 3 इंशाया निगार इस सिनफ के तहत जो है अपनी तहरीरें लिख रहे थे। उनमें जो है यानी कि स्पर्द कलम कर रहे थे, जिनका एतराफ डॉक्टर वज़ीर आगा ने भी इन अल्फाज में किया। वो कहते हैं पाकिस्तान में इंशाया निगारी एक तहरीर की सूरत इख्तियार कर चुकी है, जबकि भारत में ताहाल सिर्फ 3 इंशाया निगारों ने इस मैदान में कदम रखा। इनमें 2 मंजे हुए अदीब है, यानी अहमद जमाल पाशा और रामलाल नाहबूरी, लेकिन तीसरा एक अहम नौजवान इंशाया निगार मोहम्मद असदुल्ला है। ये इन जो है वज़ीर आगा का कौल है और ये वज़ीर आगा के मुताबिक जो है ये 3 इंशाया निगार सामने आते हैं। गोया हम मख्तसर तौर पर आप लोगों को बता दें कि ये वो इंशाया निगार है जो उस सिनफ की आबियारी, तरक्की और फ़रोग़ के लिए तहरीरें मुख्तलिफ कर रहे हैं। और पहले के मुकाबले में अगर आप नज़र दौड़ाओगे तो मौजूदा दौर में इस सिनफ के तहत लिखने वालों की तादाद में रोज़ बरोज़ इजाफा होता जा रहा है और यहाँ के अदीब
इस सिनफ को पाकिस्तान के दोष बदोश खड़ा करने की कोशिश में दिलजान से मेहनत कर रहे हैं। आज इंशाया मौज़ूआती, फ़िक्री और मानवी लिहाज से वसत पज़ीर है और इसकी अब तक रफ्तार भी पक्का चलता है कि इसका मुस्तकबिल शानदार और ताबनाक है। नौजवान कलमकारों की रग़बत और दिलचस्पी से सिनफ के हवाले से बढ़ती जा रही है और यूं लगता है कि मौजूदा सदी इंशाया के लिए मुफीद और कारआमद साबित होगी। तो अजीज तलबा व तालिबात, इसके साथ ही जो है मैं आपसे जो है इजाज़त लेना चाहता हूँ। ये इंशाया जो है, इंशाया के हवाले से हमने बहस की है, तो उम्मीद है आप लोग जो है इस बहस को समझ चुके होंगे। तो दीजिए इजाज़त, शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, नमस्कार।